the assumption of linearity is not fulfilled. So your first step after fitting the model is to plot the residual graph. If your residual graph is linear, that is an indication that the linearity assumption is fulfilled. If your graph is non-linear, is a violation of the linearity assumption. So you have to think over the another model to fit this issue of non-linearity in the model. Now we are going to consider one complete example of linear model into R. In this multiple regression with the variable which are salaries, the first variable, which is assumed as a dependent variable. And other variables are course evaluations is the one predictor, and the second predictor is the number of publication by a teacher. Actually, this is the problem of internet, because I am using my mobile data and the signals are not too good. That is why you are facing noise. Is this clear, my sound? Can you hear me clearly? Yes, okay. Sir, Okay. So three variables are here. The first variable is the salary. The second variable is the course evaluation, and which the teacher is teaching. And the third variable is the number of publication in a year published by a teacher. These two variables are the independent variable, and this variable is a dependent variable that we have to predict with the help of these two predictors. So the first step in model building is to revisit the data and check for the assumption. The data is here. The salaries for, I think it's about 50 teachers. The second variable evaluation is 5.19, 8.16 out of 10, 6.93. And the article published in a year, 12 article published by this teacher, 16 article in a year published by this teacher, no article published by this teacher. So you can revisit the data on the right side of this slide. This data is stored in a file named as palmbeachatlantic.csv. Is a CSV file, comma separated. So your first step is to load the file in a data frame by using the command read.csv.
So the command read.csv is used with this CSV file, and the new data frame is created. The name of the new data frame is my data fr. My data fr stands for my data frame. The second is view the data frame, plot the data frame, and then applying a linear model. The very clear steps these are: view the data frame, the 3 variables along with the 50 observations. Then plot command will give you the scatter plots. How many scatter plots will be formed? You have one predicting and 2 predictors. So x1 and x2, these are the 2 predictors, x1 with y and x2 with y. These are the scatter plot among the predictor and predicting. As well, we may have one graph which is between x1 and x2. This is called scatter plot among the 2 independent variable. So we have the 2 categories of these plots. One plot is between dependent variable and predictor, these 2 graphs, and another graph we have which is between the 2 independent variables. Linear model then is to be applied by command lm, and the structure of this command is to specify the dependent variable first, and then a independent variable with the plus sign. First independent variable and second independent variable. And model will give an output. This output is stored in the variable Palm Beach LM. The Palm Beach LM is a new data frame which contains the output of the entire linear model. And the next command is plotting the data with the residuals, the fitted data along with the residual. So that will a graph which gives us the testing of assumptions, whether the residuals are normally distributed or not. And again, we have a plot of QQ norm, which is constructed for the residuals obtained by this model. So we have a model which is Palm Beach LM, and RESID stands for the residuals of this model. And these residuals are plotted by using the QQ norm command, which gives us the probability plot of the residuals. If the probability plot of these residuals are linear, that is an indication that the linear model is suitable. If the probability plot of this residual variable is not linear, this indicates we are violating the assumption of linearity, and we have to revisit the assumptions, and you have to revisit the model as well. So these are basically the process that I was describing as an iterative procedure, in which you have to several times check and test the model. If the model is good, then you can use this model for the prediction purposes. If the model is not good, then you have to revisit either the assumptions or the data model. Mustafa Nasir is asking something. Ji Mustafa. सर ये सेकंड लास्ट लाइन में जो है किस चीज का प्लॉट बन रहा है? ये प्लॉट बन रहा है फिटेड वेरिएबल का और रेजिडुअल के साथ. ठीक है, 2 वेरिएबल हैं इसमें. एक तो आपका फिटेड वेरिएबल है. फिटेड वेरिएबल क्या होता है? देखिए, फिटेड वेरिएबल ये होता है, एक तो एक्चुअल वैल्यूज हैं वाई की, जो कि हमारे पास सैलरीज हैं टीचर्स की, और एक हम बनाते हैं वाई कैप विच इज एस्टिमेटेड बाय द हेल्प ऑफ मॉडल. तो मॉडल जितनी वाई की वैल्यूज होती हैं उतनी वाई कैप की वैल्यूज आ जाती हैं. इन वैल्यूज को हम कहते हैं फिटेड वैल्यूज,
और इन वैल्यूज को हम कहते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। तो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल के दो कॉलम्स बन जाते हैं आफ्टर फिटिंग द मॉडल। ये वाई कैप मॉडल फिट होने के बाद आता है, मॉडल फिट होने से पहले नहीं आता। तो जब हमने ये मॉडल फिट कर लिया पाम बीच का, तो फिर हमारे पास ये फिटेड कमांड जब हम यूज करेंगे तो जो मॉडल बना होगा उससे ये फिटेड वैल्यूज खुद ही कैलकुलेट कर लेगा सारी की सारी, और यहाँ पे फिटेड वैल्यूज को पाम बीच के रेजिडुअल्स के साथ प्लॉट करेगा और उसके मॉडल को चेक करेगा। और आखिरी वाली लाइन जो है उसमें सिर्फ सारे रेजिडुअल्स प्लॉट होंगे, जिससे रेजिडुअल ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ऋषि कुमार जी। ऋषि कुमार, यू कैन आस्क। सर आई वांट टू आस्क कि जो थर्ड में आपने लिखा है पाम बीच एलन, उसमें जी वी हैव मेंशन कि सैलरी इज डिपेंडेंट वेरिएबल जी एंड रेस्ट ऑफ द टू आर इंडिपेंडेंट। यस, तो उसके थ्रू हमने आर को बता दिया है कि ठीक है व्हिच इज डिपेंडेंट। ठीक है जी। व्हाट योर क्वेश्चन इज? यस, दैट इज ट्रू कि हमने ये सिंबल है सेपरेटर का सिंबल, ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को सेपरेट करता है, ये सेपरेटर है। और ये पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल है IV1 और ये दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है IV2। अब जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, ऑल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विल बी separated with the plus sign. The plus sign is used for separating the all independent variables in the model, and this tilde symbol is used for indicating the difference among the dependent and the independent variable. So that is the way of writing the model in R. Okay, sir. Now the next is the output. This is the output, and the output is by just computing the correlations of this data. Core function is used, or data is basically the data frame which contains the entire data: Y, salaries, and X1 and X2. X1 is the evaluations by students, and X2 are the number of articles published by the teachers. So article published, the evaluation, the salary, the article published, the evaluation, the 6 correlations that I was discussing over the previous slide. These 6 correlations are what? This is 1. Why it is 1? The reason is a correlation between the salary with the salary itself. It is 1 because it is the correlation of article published with the article published itself, and so on in the same way. So the diagonal values are always be 1, which indicates that these are the correlation of the among the same variables. Now the one point is this correlation is 0.84, and it is the correlation between the article and the salary. Salary is the dependent variable, and the article is a first independent variable IV1, and is a strong correlation and is a positive correlation. Means as much as the article published by the teacher will gives a benefit on the salary. जितने ज़्यादा वो आर्टिकल पब्लिश करेगा एक साल में, उतना बेनिफिट उसको उसकी सैलरी में मिलेगा। तो इसका मतलब है आर्टिकल पब्लिश इज गिविंग अस अ बेटर input variable for predicting the salary. The second variable is the evaluation by a student of the teacher, and the impact of evaluation over the salary is determined by this correlation 0.577. 0.57 is approximately towards 0.6. तो इट मीन्स कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये जो इवैल्यूएशन है इट इज इम्पैक्टिंग ओवर द सैलरी बाय दिस रेशो, यानी 100 में से 60% इम्पैक्ट है किसका, इवैल्यूएशन का सैलरी पे, और आर्टिकल पब्लिश्ड का सैलरी पे 84.7% इम्पैक्ट है। तो ये दोनों कोरिलेशन हमें सिग्निफिकेंट नजर आ रहे हैं ये, और इन दोनों को स्ट्रांग होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अमंग वी शुड हैव स्ट्रांग कोरिलेशन। जितना स्ट्रांग कोरिलेशन ये होगा इसमें मॉडल एक्यूरेसी उतनी बेटर आएगी, और जितना ये वीक कोरिलेशन होगा उसको हम ये कहेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल which has a weak correlation with the dependent variable is not playing an important role for predicting the dependent variable.
तो इसमें मैं ये अगर कंपैरिजन करूं कि आर्टिकल पब्लिश और इवैल्यूएशन में से कौन सा ज्यादा बेटर वे में प्रेडिक्शन दे रहा है, तो आर्टिकल पब्लिश इज गिविंग एज अ बेटर prediction as compared to the evaluation of the teacher by the students. तो ये एक कंपैरिजन है, लेकिन अभी हम इसका कोई फाइनल जजमेंट नहीं देते कि वेदर वी हैव टू कीप ऑल द टू वेरिएबल इनटू द मॉडल, और ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक तो हमें पता चल ही गया कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके कंपैरिजन में, लेकिन क्या दोनों को रखना चाहिए या एक को छोड़ देना चाहिए? तो this approach will be adopted by looking at the p values, because this is an inferential procedure जिसमें हम इन वेरिएबल की जो p values हैं वो निकालेंगे मॉडल की, और इन p values को देखेंगे कि क्या इनके कोरिलेशन सिग्निफिकेंट हैं या इनसिग्निफिकेंट हैं। अगर कोरिलेशन सिग्निफिकेंट हैं तो वी कैन कीप द स्पेसिफिक वेरिएबल इनटू आवर मॉडल. If the correlation is insignificant, then we can ignore that specific variable to keep in the model. One more correlation is important here, and that correlation is the correlation among the evaluation and the article, which is this one, 0.6. Actually, there are only three correlation. One is this, other is 0.57, and the third is this. So this is important because it is one is independent versus dependent. Two is also be independent versus dependent. But three is basically the independent versus independent. IV1 and IV2. What about the strength of this correlation? Is this should be high or this should be weak? G. Can anyone of you have a perception whether this correlation should be high or weak? I think It should be high. It should be high. So the answer is it should be weak, not too high. The reason is if this is high, then this will introduce a factor into the model that is called multicollinearity. So what is multicollinearity is? Multicollinearity is these two independent variables having a strong correlation among themselves. So that is an indication that we should have to keep any one of them, not both of them, because mostly they are playing the same role in predicting the salary. Is this clear? So your correlation among the independent variable and dependent variable should be high, and your correlation between the independent variables should be low. That is basically a rule of thumb. Okay, independent versus independent should be low. It should not be strong. Independent versus dependent should be strong. The reason is, सर जी पूछिए. सर सबसे पहले भी पूछना था कि जो आपने पीछे फॉर्मूले में रेजिडुअल लिखा था तो वो अलग अलग वेरिएबल्स का था या वो पूरी कोई या वो देखिए रेजिडुअल तो एक ओवरऑल निकलता है. ये रेजिडुअल है. ये कैसे निकलता है रेजिडुअल? ये हम y और माइनस इंटायर मॉडल को माइनस कर देते हैं. ये y कैप क्या है? ये y कैप में तो इंटायर मॉडल रखा हुआ है, तो इसमें कोई एक वेरिएबल नहीं होता. इसमें y कैप में सारे वेरिएबल को मिला के आ रहा होता है ये. तो इससे इसको कंपेयर ना करें. अभी हम सेपरेट कोरिलेशन टेबल देख रहे हैं, और जब भी सबसे पहला टास्क होगा ना मॉडल का, वो सबसे पहला टास्क यही होगा कि यू हैव टू ऑब्जर्व द कोरिलेशन टेबल कि विच कोरिलेशंस आ रहा है एंड विच कोरिलेशंस आर लो. तो दिस इज द रूल ऑफ थंब कि ये होंगे तो बहुत सारे. देखें, अगर मेरे पास 3 वेरिएबल ना होते, मेरे पास 5 वेरिएबल होते, तो ये 5C3 कोरिलेशंस बनते, 5C2 सॉरी, ये 5C2 कोरिलेशंस बनते, क्योंकि हर एक डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट से और इंडिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट से. तो आप इसमें रूल क्या है? रूल ये है कि आपको ऑब्जर्व ये करना है कि ये जो 3 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट नहीं है. ये 3 नंबर का जो कोरिलेशन है, इट इज अ कोरिलेशन अमंग द इंडिपेंडेंट वर्सेस इंडिपेंडेंट.
तो इंडिपेंडेंट वर्सेस इंडिपेंडेंट 0.6 आ रहा है यहाँ पे, ये सिग्निफिकेंट तो है, लेकिन ये कितना स्ट्रांग होना चाहिए, इसकी रिकमेंडेड फिगर है 0.8 एंड अबव। अगर म्यूट कर लें, देखिए जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो इसको म्यूट कर लें। इज दिस क्लियर? जी, यस सर। हसन सुल्तान, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यस सर, क्लियर क्लियर। मोहम्मद मुस्तफा नासिर, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? सर मल्टीकोलिनियरिटी को रिपीट कर देंगे। मल्टीकोलिनियरिटी क्या है? मल्टीकोलिनियरिटी है if the correlation among the independent and the another independent is high, then this is a factor of multicollinearity that should not occur in your model. मल्टीकोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए, ये जो MC में कह रहा हूँ मल्टीकोलिनियरिटी is not feasible. इसमें ये कब होती है मल्टीकोलिनियरिटी? ये होती है उस वक्त जबकि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का कोरिलेशन 0.8 से अबव हो जाए, मोर देन 0.8। कौन सा कोरिलेशन? कोई भी IV वर्सेस IV। अगर आपके पास 3-4 IVs हैं तो किसी भी 2 IVs के दरमियान अगर ये कोरिलेशन 0.8 से अबव हो गया तो we can say that these two variable are basically playing a multicollinearity into the model. इनमें से फिर हम करते ये हैं, instead of keeping both of these two variable, we should keep any one of them. जो हम समझते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट में से अगर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिर हम उसको रख लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ये ठीक है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी इनटू मॉडल। तो मल्टीकोलिनियरिटी मॉडल में नहीं होनी चाहिए, लीनियरिटी होनी चाहिए मॉडल में। एरर जो है वो आपका लीनियर होना चाहिए, और एरर्स जो हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, और एरर्स का जो ग्राफ है वो स्मूथ होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। ऋषि कुमार हैज एन क्वेश्चन, जी यू कैन आस्क। Sir, I want to ask ये 0.63 is showing 0.63 मैं देखें ये सिग्निफिकेंट, ये स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन मैं कितना स्ट्रॉन्ग कह रहा हूँ देखें 0.8 एंड अबव। अगर ये 0.8 एंड अबव आ जाएगा तो मैं फिर मल्टीकोलिनियरिटी को इस पे कंसिडर करूंगा, ठीक है। ये है स्ट्रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा ये 0.6 जो है ये वीक है, लेकिन ये कितना स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन में आ रहा है 0.8 एंड अबव में। अगर ये 0.8 एंड अबव से कम है तो आप इसको मल्टीकोलिनियरिटी में काउंट ना करें। आगे बढ़े। yes sir। ओके अच्छा, these two are the tables in which correlations with the p values are described. ऊपर वाले टेबल में तो देखें डिस्क्रिप्टिव मेजर्स हैं। डिस्क्रिप्टिव मेजर्स क्या हैं? डिस्क्रिप्टिव मेजर्स इसमें ये हैं कि आपका जो सैलरी है उसकी वैल्यूज का मीन कितना है, इवैल्यूएशन का मीन कितना है, एंड आर्टिकल पब्लिश्ड का मीन कितना है। ऑन द एवरेज 11.2 आर्टिकल पब्लिश्ड बाय टीचर्स इन a year ऑन द एवरेज। अब 11.2 तो नहीं होता, बहरहाल 11 अगर मैं इसको राउंड कर लूं तो ये 11 आर्टिकल। और 6.48 इज व्हाट? ऑन द एवरेज स्टूडेंट्स आर गिविंग अप्रॉक्सिमेटली 6.5 आउट ऑफ 10 points to the teachers in their courses and their lectures। और इससे ऊपर वाला जो मीन है that is indicating कि जी आपका उसमें एक्चुअली मुझे ऊपर की जो प्रेजेंटेशन की वो है फर्स्ट स्लाइड वो डिस्प्ले नहीं हो रही है। इसमें जो ऊपर की ये आ गई है अभी 64.694। Can any one of you interpret this 64.9694? जी मीन सैलरी है ना $64,000। जी बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए
क्योंकि ये इन टर्म्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डॉलर हमें गिवन थी, तो इसका मतलब है 6,469 इज द एवरेज सैलरी। जी ओके, 1,000 से नहीं है, अच्छा ये बाय 1,000 करेंगे, ठीक है, क्योंकि बिकॉज द सैलरीज आर गिवन इन टर्म्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर, नॉट इन टर्म्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डॉलर। वो हंड्रेड्स ऑफ डॉलर में जहन में वो आ रहा था जो हम प्राइस ऑफ कार वाली एग्जांपल कर रहे थे, उसमें वो हंड्रेड्स ऑफ डॉलर में प्राइसेस गिवन थी, यहाँ पे सैलरीज हमें थाउजेंड्स ऑफ डॉलर में गिवन है। तो ये तो एवरेज है, और इनके स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, इनके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन है, ऑल हैव 50 ऑब्जर्वेशंस, और इट मीन्स के डेटा पॉइंट्स कंप्लीट हैं। देखिए डेटा पॉइंट में कोई मिसिंग नंबर नहीं है, सब में 50 आ रहा है अगर, तो इसका मतलब है 50 सैलरीज वी हैव, 50 इवैल्यूएशंस वी हैव, एज वेल एज 50 आर्टिकल पब्लिश, चाहे अब उनमें से किसी के जीरो हैं चाहे, लेकिन ऑल वैल्यूज वी हैव। तो ये मिसिंग डेटा में इसमें कोई भी नहीं है, और डेटा के मीन और ये डिस्क्रिप्टिव मेजर्स हमें यहाँ दिखाए गए हैं। इन द टेबल बिलो वी हैव द डिस्कशन ऑफ कोरिलेशन, वो तो अभी हम कर ही चुके हैं। देखिए ये कोरिलेशन वही है जो अभी प्रीवियस टेबल में नजर आ रहे थे। तो वी आर नॉट गोइंग टू फोकस ओवर दीज कोरिलेशंस, वी आर बेसिकली गोइंग टू फोकस अपॉन द पी वैल्यूज, दीज आर द पी वैल्यूज एंड दीज आर द एन। तो ये हमारे लिए अभी इस वक्त सिग्निफिकेंट नहीं है, सारे एन 50-50 हैं, वो समझ में आ गया सबको। ये सारे वही कोरिलेशन है जो प्रीवियस टेबल पे बने हुए थे, ये भी अब मुझे दोबारा एक्सप्लेन नहीं करने, लेकिन हमें ये जो कोरिलेशन की पी वैल्यूज हैं ये हमें इस वक्त एनालाइज करनी है, व्हाट दीज वैल्यूज आर इंडिकेटिंग। These values, whenever we are every time discussing the p values, means there is some hypothesis behind that. In this case, I am talking about this p value, which is evaluation and salary. So H naught p value, their hypothesis become correlation, this symbol, evaluation versus salary. Is this correlation is 0 or not? Or H1 is what? The correlation versus evaluation and salary is not 0. This is an indication that the null hypothesis is rejected because this p value is smaller than the level of significance. So the null hypothesis is rejected. The conclusion will be there is a significant correlation among the evaluation and salary. In the same way, all the p values are 0. So I can clearly say that the article published and the salary having a significant correlation. The article published and average teaching is also significant correlation. तो ये तीन आपकी p values, सॉरी 3 H naught बनेंगी, एक H naught बनेगी आपकी correlation among evaluation and salary, दूसरी H naught बनेगी आपकी publication and salary, और तीसरी H naught बनेगी आपकी evaluation and publication. ये तीनों null hypothesis reject हो रही हैं. That is an indication that all the correlations are significant. But significant correlation does not means we have multicollinearity. ये वाला correlation significant आ रहा है, ये है significant, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है कि 0.8 से above हो जाए. अगर इसके correlation की value ये जो 0.63 है, अगर यहाँ होता 0.85, अब मैं इसको कह देता कि जी इवैल्यूएशन और आर्टिकल पब्लिश ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और इनका कोरिलेशन इतना स्ट्रांग हो गया कि ये 0.8 से भी एक्सीड कर रहा है, तो आई कैन कंसीडर दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी. इंस्टेड ऑफ कीपिंग द बोथ वेरिएबल इनटू द मॉडल, आई शुड हैव टू एलिमिनेट वन ऑफ देम. अब मैं कौन सा एलिमिनेट करूंगा, मैं आसानी से अभी डिसाइड कर सकता हूं, जिसका कोरिलेशन कम है. देखिए इसका कोरिलेशन कम है, इसका ज्यादा है, तो मैं इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द आर्टिकल पब्लिश्ड, आई शुड हैव टू रिमूव द इवैल्यूएशन फ्रॉम द मॉडल. तो ये एक फैक्टर है डिसीजन करने का कि कौन सा वेरिएबल हमें मॉडल में रखना है एंड विच वेरिएबल वी हैव टू एलिमिनेट फ्रॉम द मॉडल. इससे नेक्स्ट टेबल में हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है, ये तो कोरिलेशन से रिलेटेड टेबल था.
The next table is a table indicating the estimates of beta. This is basically the scatter plot, salary with the article, strong positive correlation. Salary with the evaluation is a positive correlation. And this is the correlation between article, number of article published and evaluation is a positive correlation. लेकिन यहाँ आप स्ट्रेंथ भी देख सकते हैं, इसमें पॉइंट ज़्यादा दूर हैं तो इसमें थोड़ी सी वीकनेस है. इसमें पॉइंट सबसे क्लोजर हैं, आर्टिकल पब्लिश्ड और सैलरी के, इसका 0.8 के करीब आ रहा है, और इसमें पॉइंट ज़रा दूर हैं तो इसका 0.6 के करीब आ रहा है. तो आप देख सकते हैं ये दोनों कोरिलेशन 0.6 के करीब हैं और ये वाला कोरिलेशन 0.8 के करीब है, लेकिन सारे कोरिलेशन जो हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं, इनमें नेगेटिव कोरिलेशन कोई भी नहीं है. In the next slide, we have the coefficients. These are the values of beta. This is your estimate of beta naught. This is an estimate of beta 1. This is the estimate of beta 2. Here we have the two gradients, beta 1 and beta 2. This is the gradient with the variable evaluation. This is the gradient with the variable articles. And this is not a gradient, this is an intercept. So as we have a three-dimensional data here, the one variable is article publish. The second variable is the evaluation by student. And the third variable is the salary. So x1, x2, and your salary, z axis, y. अब ये मॉडल जो बन रहा है आपका वो यहाँ आएगा, ये पॉइंट जो आएंगे ये बीच में आएंगे इसके, और ये थ्री डायमेंशनल आपको ग्राफ इसका मैंने दिखाया है ये. अच्छा, व्हाट दीज वैल्यूज आर, ये बीटा नॉट वाई का मॉडल आपको मैंने शुरू में बताया था. y इज इक्वल टू बी नॉट प्लस b1 x1 प्लस b2 x2, और इसमें ये भी था प्लस एरर. प्लस एरर विल बी रिमूव्ड व्हेनेवर वी हैव एन एस्टिमेटेड मॉडल. एस्टिमेटेड मॉडल में एरर नहीं लिखा जाएगा, और अगर ये मैं कैप हटा दूंगा तो यहाँ पे प्लस एरर मुझे इसके साथ इंक्लूड करना पड़ेगा. तो ये जो डैश लगा हुआ है यहाँ पे, ये दैट इज इंडिकेशन ऑफ वाई कैप. ये वाई डैश लगा हुआ है, दैट इज वाई कैप. और दिस इज बी नॉट, द वैल्यू ऑफ बी नॉट. दिस इज वैल्यू ऑफ b1, दिस इज वैल्यू ऑफ b2. तो शुड आई हैव टू कीप बोथ ऑफ b1 एंड b2 इनटू द मॉडल? This is one question. Can anyone of you answer this question? Do we have to keep both beta 1 and beta 2 in the model, or any one of them? Correlation नहीं है. जी? Can you repeat your answer? We'll keep both because correlation is less than 0.8 between them. Okay. One point is multicollinearity तो नहीं है. देखें, multicollinearity नहीं है तो multicollinearity तो हमसे कह रही है दोनों को रख लें, क्योंकि multicollinearity नहीं है. अगर multicollinearity होती तो we should have to eliminate one of them. लेकिन इसके बाद का एक स्टेप और है, and that step is to find out the p values of these betas. So in the next slide we have the p values of these betas. So you can have the perception of the entire table. Here we have coefficients. This is the one of the very important part of this output. This is your model formula. Formula is what? Dependent variable salary. This is very important output, and all of you should be able to explain and understand this output. Your first independent variable IV1, your second independent variable IV2. Okay, plus sign as a separator between the two independent variable, and a separator for the dependent is tilde symbol. These are your residuals. I will explain what these residuals are indicating. Before explaining these residual, I am explaining these estimates. Estimates are of what? Estimates of betas.
So this is the value of your B naught as given in the previous table on the previous slide. This is the value of your B1, estimate of slope with the evaluation, and B1 and B2. This is your slope with the article published. The value of the slope, both slopes are positive, indicating that we have positive correlation. If one of them is negative, that's it. That is an indication that this independent variable having a negative correlation with the dependent variable. So slopes may be positive, slopes may be negative. Both slopes may be positive, both slopes may be negative. One may be positive, one. So all possibilities we may have. लेकिन ये आपको समझना है, पॉजिटिव मीन्स कि योर स्लोप आर पॉजिटिव, इंडिकेटिंग कि आपका जो मॉडल है वेरिएबल के साथ वो अपवर्ड ट्रेंड बना रहा है, और अगर ये नेगेटिव हो गया इसका मतलब है आपका मॉडल इसके साथ डाउनवर्ड ट्रेंड बना रहा है ये। अच्छा, एक तो इनकी वैल्यूज अब देखनी है आपको, इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, लेकिन कम और ज्यादा वैल्यू से मैटर नहीं करता। इसमें जो मैटर करता है वो ये करता है इनकी पी वैल्यूज। अच्छा, one thing is these p values are very important. So against the p values you have to write down the null hypothesis. Against this p value, this is the p value against intercept. Intercept means the beta naught. So you should have to write down the one null hypothesis, that is h naught beta naught is 0 and beta 1 beta naught is not 0, null and alternate hypothesis. Another hypothesis against with this evaluation, which is to be observed by using this p value. This is the second p value which is against the variable evaluation. So h naught will be what? Beta 1 is 0 and beta 1 is not 0. This is your alternate hypothesis, H1. And the third hypothesis, H naught, it is against article published. And the p value is this. Beta 2 is 0 and beta 2 is not 0. This p value is very small, the null hypothesis is rejected. Significant beta naught we have. This p value is above the value of alpha. This is h naught is true and h1 is false. This is insignificant. So this beta 1 is insignificant while beta naught is significant, and the last beta, which is beta 2, it is also significant. So you should have to keep b naught into your model as well as beta 2 into your model, and you have to ignore beta 1 from the model because the null hypothesis for the beta 1, which is evaluation. So finally we can decide evaluation is not giving us a good impact over the salaries as compared to the article published, and according to the p values its slope is insignificant. So we should have to eliminate the evaluation variable from the model. So your model was what? Your model was salary, evaluation, article. So according to the recommendation, you have to rebuild the model by just putting salary and article, only the two variable. This evaluation is not giving us a very significant impact on predicting the salary. So that is an interpretation of coefficients and its p values. And previously I told you these three stars are indicating that very high
strong evidence against H1, strong evidence against H1 और strong evidence against H0. तो ये आपका कंक्लूजन यहाँ पूरा हो रहा है. इसके बाद ऊपर वाले को देखना है अब ये कि ये जो रेजिडुअल्स हैं, व्हाट दीज रेजिडुअल्स आर इंडिकेटिंग. Yes, you have to first check the multicollinearity. तो मल्टीकोलिनियरिटी से देखिए ये वैल्यूएशन का वेरिएबल पास हो गया था, तो हम आगे आ गए थे क्योंकि उसकी वैल्यू कोरिलेशन की 0.8 से अबव नहीं गई थी. लेकिन आफ्टर दैट ये जो बीटा की पी वैल्यू है ना, इसने इसको यहाँ पर रिटेन कर लिया, यहाँ स्टॉप कर दिया कि हम इसको ना रखें मॉडल में क्योंकि इसका बीटा जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है. अगर यहाँ कोरिलेशन इसका बहुत स्ट्रांग हो जाता तो हम इसे पहले ड्यू टू द स्ट्रांग कोरिलेशन वहीं पे एलिमिनेट कर चुके होते, लेकिन वहां से तो ये पास हो गया क्योंकि इतना 0.8 अबव नहीं था इसका कोरिलेशन. लेकिन यहाँ के जो बीटा की वैल्यू इसकी इनसिग्निफिकेंट है, तो ये बीटा की वजह से ये इनसिग्निफिकेंट हो गया. तो मैं भी मॉडल को रिबिल्ड करूंगा और इसको हटा के मॉडल दोबारा बनाऊंगा. अब आप रेजिडुअल को अंडरस्टैंड कीजिए. ये जो रेजिडुअल्स हैं, अबाउट द रेजिडुअल यू शुड हैव अ परसेप्शन दैट कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए. ये मैंने शुरू में ही बताया था. रेजिडुअल्स आर व्हाट? these e should be normally distributed और इनका मीन 0 होना चाहिए and the variance is a constant value which is sigma square. तो अब आप इसको देखिए रेजिडुअल्स को. अगर रेजिडुअल्स का ये जो सेंट्रल वैल्यू है मीडियन की, आइडियल कंडीशन तो ये है कि ये 0 हो जाए, ये मीडियन 0 हो जाए अगर ये सेंटर में आ जाए तो. और ये जो वो सारी वैल्यूज हैं फर्स्ट क्वार्टाइल की और थर्ड क्वार्टाइल की, ये आइडेंटिकल हो जाए. ये आइडेंटिकल कैसे हो जाए? ये -3.7 है, ये +3.7 हो, तो ये आइडेंटिकल हो गए. यानी ये फर्स्ट क्वार्टाइल एग्जैक्ट यहाँ आ रहा है, सेम डिस्टेंस पे थर्ड क्वार्टाइल आ रहा है. तो अगर ये दोनों भी सेम हो गए तो ये और स्ट्रॉन्ग एविडेंस है नॉर्मेलिटी ऑफ अजम्पशन की. और ये जो मिनिमा और ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है और ये मैक्सिमा है, अगर ये भी बिल्कुल इक्वी डिस्टेंट हो जाए, -18 या +18, तो ये भी इक्विडिस्टेंट हो जाए, तो ये परफेक्ट सिचुएशन होगी assumption ऑफ नॉर्मेलिटी ऑफ रेजिडुअल की. लेकिन इन दिस केस वी हैव अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ दैट कि ये 0 नहीं है, 0.9 है माइनस में, ये 3.7 है, ये 4 पॉइंट, लेकिन क्लोजर टू ईच अदर. और ये -18 है, ये 16 है, नॉट टू फार, क्लोजर टू ईच अदर. तो आई कैन हैव अ परसेप्शन ऑफ normality in assumption in the residuals. The data is indicating that the residuals are approximately normally distributed with the help of this residual table. G, one question. That question is okay. No question. The final element in this output is adjusted R square. This is 0.709. This 0.709 is indicating that the independent variable and dependent variable. We are using independent variable evaluation and article, and dependent variable is salary. The correlation among the salary and these two independent variable is 0.709. Means ये दोनों वेरिएबल को अगर मैं एक अज्यूम कर लूं, दिस इज वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और सैलरी को मैं एक डिपेंडेंट वेरिएबल अज्यूम कर लूं, and I am calculating the correlation among these two variables. तो that correlation is 0.709. तो हम इसको finally conclude यूं करेंगे कि this R square, if this R square is basically the model accuracy parameter and its values are from 0 to 1. 0 is indicating that the model is poor. 1 is indicating that model is if it is closer to the 1, the model is good. But if it is perfectly 1,
तो इट इज कॉल्ड ओवर एस्टिमेशन इन द मॉडल। तो एग्जैक्टली वन देखें कभी भी नहीं आता, वो आइडियल सिचुएशंस में होता है। लेकिन अगर हाँ क्लोजर टू वन है कि आर एडजस्टेड आर स्क्वायर 0.8 है 0.9 है, तो वी हैव अ परसेप्शन दैट द मॉडल इज स्ट्रॉन्ग मॉडल एंड द प्रिडिक्शंस आर गुड फ्रॉम दिस मॉडल। तो ये आप एडजस्टेड आर स्क्वायर को समझिए, क्योंकि फाइनली मॉडल टेस्टिंग पैरामीटर में जब हम आखिर में डिसीजन कर रहे होते हैं, वी आर टेकिंग द डिसीजंस बाय यूजिंग मॉडल adjusted R square. Okay, residuals are not clear. Residual, these are just errors. How these errors are computed? These errors are computed by a difference of y and y cap. These are residuals. Or by one graph, I can explain these residuals. That is basically this graph. You can see the residual in this graph. These points are your actual points, which are referred to as y. This is your y1 first value in the y given table. This is your y2, the second value, or the salary of the second professor, the salary of the third professor, and so on. These points are known as the actual points. Actual point means actual salaries. जो भी हर एक शख्स की सैलरी है, अगर मैं उस डेटा के पर सेक्शन में इस ग्राफ को समझाऊं, तो ये एक्चुअल सैलरी है, पहले प्रोफेसर की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की। अब हमने एक मॉडल बना लिया। मॉडल हमने क्या बनाया? B0 प्लस B1 सॉरी B0 B1 x1 प्लस B2 x2, ये हमारा मॉडल बन गया। इसमें B0 की वैल्यू पुट कर दी, B1 की पुट कर दी, B पुट कर दी। अब हमें हर Bx की वैल्यू रखने के बाद y की एक वैल्यू मिल जाएगी। दिस इज कॉल्ड एस्टिमेटेड वैल्यू। कैप लगा देते हैं, y कैप। इनका जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, देखें ये डिफरेंस जो है, दिस डिफरेंस इज रेजिडुअल। ये आपकी y कैप की वैल्यू है, ये आपकी y1 की वैल्यू है। ये डिफरेंस अगर मैंने निकाल लिया, ये दिस इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ रेजिडुअल, this is the second value of residual, this is the third value of residual and so on. इस तरह से हमारे कितनी रेजिडुअल की वैल्यूज आ जाएंगी? जितने डेटा पॉइंट्स हैं। कितने डेटा पॉइंट थे उस एग्जांपल में? 50। तो we have 50 values of y and we have 50 values of y cap, first value, second, third, so on. अगर मैं इनको डिफर कर लूं, डिफरेंस निकाल लूं, ये रेजिडुअल आ जाएंगे आपके, या इन्हें बस सिंपल माइनस कर लें आप। जब आप इनके डिफरेंसेस निकाल लेंगे तो ये डिफरेंसेस आपके पास आ जाएंगे। अब डिफरेंसेस कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है, देखिए यहीं से नजर आ रहा है। वॉट एवर द पॉइंट्स आर बिलो द लाइन हैविंग अ नेगेटिव रेजिडुअल, एंड व्हाट आर द पॉइंट्स व्हिच आर अबव द लाइन हैविंग अ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द रेजिडुअल। तो सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ दीज रेजिडुअल्स आर पॉजिटिव एंड द रेस्ट आर नेगेटिव. That is why the sum of residuals is 0. And whenever the sum of residual is 0, so the mean of residual is also be 0, because the mean can be computed by just dividing that total by 50. So 0 by 50 becomes 0. That is the assumption of errors are normally distributed with the mean 0 and the variance sigma square. I think so. Now you can have a clear-cut perception of residual as well as. अच्छा, मैं बीटा नॉट के हाइपोथेसिस अभी आपको दिखाता हूँ वो कैसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट होंगे, लेकिन अप टू नाउ ये जो रेजिडुअल का कॉन्सेप्ट था, इट इज नाउ फिनिश्ड. ये बीटा नॉट और बीटा नॉट के जो हाइपोथेसिस हैं, ये तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. एक्सेप्टेड फ्रॉम द प्रीवियस टेबल इन द लास्ट स्लाइड. एक्सेप्टेड देखें, दो एक्सेप्ट हुए थे. बीटा वन एक्सेप्ट, इनके ये वाली हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई थी. दिस इज सिग्निफिकेंट विच इज इंटरसेप्ट एंड इट इज सिग्निफिकेंट, दिस इज आर्टिकल, और ये इनसिग्निफिकेंट था. तो अभी तक तो मॉडल में, लेकिन हमने ये मॉडल इसके थ्रू बनाया, इस फार्मूले के थ्रू.
इसका मतलब अभी तक जो मैं मॉडल को परज्यूम कर रहा हूँ वो तीनों वेरिएबल से कर रहा हूँ, और वट एवर डिसीजन आई एम गोइंग टू टेक वो सारे वेरिएबल्स को लेके कर रहा हूँ। अब जब मैंने फाइनल डिसीजन ये बना लिया कि दिस बीटा इज इनसिग्निफिकेंट, ये मुझे निकाल देना है मॉडल से, हटा देना है इसको मॉडल से, तो इसके लिए मैं मॉडल को रीबिल्ड करूंगा। मुझे वो मॉडल को मैं रीबिल्ड कैसे करूंगा, ये फार्मूला दोबारा लगाऊंगा। इन दिस फार्मूला आई हैव टू rebuild the model by using only these two variables, salary and article। बस सिर्फ इससे मैं मॉडल बनाऊंगा। तो अब होगा क्या, मेरे पास आउटपुट में ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये मैंने अपने मॉडल की इक्वेशन में रखा ही नहीं था, तो इसलिए ये आएगा ही नहीं। जब ये आएगा नहीं तो इससे क्या होगा, इससे ये भी बेटर हो जाएगा। आप देखिएगा ये जो रेजिडुअल्स हैं ये और क्लोज हो जाएंगे। जो मैं बता रहा था कि ये 16 है तो हो सकता है ये -16 आ जाए, ये -3 है तो हो सकता है ये +3 आ जाए। तो ये काफी वैल्यूज जो हैं वो आपकी और एक्यूरेट हो जाएंगी और काफी बेटर हो जाएंगी ये। देखें, जब भी हम ये निकालते हैं पी वैल्यू, तो पी वैल्यू से पीछे कोई स्टेटिस्टिक्स होती है। तो ये जो टी स्कोर्स हैं हम इसको रीड यूं नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें सबके फार्मूलाज हैं। पहले टी स्कोर कैलकुलेट होता है और फिर टी स्कोर के बाद उसकी पी वैल्यूज कैलकुलेट होती हैं। तो आई एम नॉट गोइंग टू एलेबोरेट दीज टी वैल्यूज, क्योंकि इनके सबके फार्मूलाज हैं। आप पहले टी स्टेटिस्टिक्स निकालेंगे और वो टी स्टेटिस्टिक इसकी मदद से निकलेगा। मैं भी फार्मूलाज दिखा दूंगा आपको। ये टी स्टेटिस्टिक्स, ये से वैल्यू जो, जैसे आप टी स्टेटिस्टिक्स ये निकालते थे, एक्स बार माइनस मीन डिवाइडेड बाय एस अपॉन एन रूट, ये तो मीन के लिए आप टी स्टेटिस्टिक्स निकालते हैं, लेकिन ये कोरिलेशन की टी स्टेटिस्टिक्स का फार्मूला ये नहीं है। दैट इज डिफरेंट विद दिस वन। तो you have sample mean, you have sample standard deviation, you have sample size, you have a value of h naught। देखें, ये जो आप कह रहे हैं फर्स्ट टू कॉलम को डिवाइड किया है, ये इससे टी स्टेटिस्टिक्स ऐसी नहीं आ रही है। स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला मैं दिखा देता हूं आपको। ये जो ये टी स्टेटिस्टिक्स का जिस तरह ये निकाला गया है, वो उसका एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है। हाँ ठीक है, ये कुछ जगहों पे ऐसे ही होता है। ये अगर मैं जब ये कह रहा हूँ ना, देखें एक्स बार माइनस मीन अपॉन एस अपॉन एन रूट, ये जो एस अपॉन एन रूट था, आपको याद होगा इन द सेंट्रल लिमिट थ्योरम दिस वाज द स्टैंडर्ड एरर। तो ये स्टैंडर्ड एरर है, ये रहा। और ये ऊपर क्या है, एक्स बार माइनस म्यू, ये आपका एस्टिमेट है। यहाँ पे एक्स बार माइनस म्यू नहीं होगा, यहाँ होगा बीटा नॉट बी नॉट माइनस बीटा नॉट, बी नॉट माइनस बीटा नॉट। बी नॉट इज 47 और बीटा नॉट इज 0, क्योंकि एच नॉट में आपने ये रखा हुआ है बीटा नॉट इज 0। तो जब एच नॉट में रखा हुआ है बीटा नॉट इज 0, तो ये आपका एज इट इज आ गया। ये सही है। तो ये आप यहाँ से एक्सप्लेन कर दिया मैंने इसको कि ये जो कैसे आएगी टी स्टेटिस्टिक्स, वो सा ये बी नॉट की वैल्यू रखें, स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू रखें, इन्हें डिवाइड कर दें, ये टी स्टेटिस्टिक्स आ जाएगा। दैट इज द फार्मूला ऑफ कंप्यूटिंग दैट। और टी स्टेटिस्टिक्स को जब आप टी टेबल में देखेंगे तो इससे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये सारा वही मैकेनिज्म है जो कि हम पीछे करते रहे हैं, एंड द सेम प्रोसीजर इज यूज्ड हियर फॉर कंप्यूटिंग द पी वैल्यूज फॉर अगेंस्ट दीज टी स्टेटिस्टिक्स। That is the conclusion which I gave you in the description, and these slides contain the overall. This is the QQ plot of residual, and it's very straight line, indicating that the residuals are normally distributed, because जो हमने last time आपको बताया था PP norm या QQ norm का जो ग्राफ है, ये normality को indicate करता है if it is linear. If it is non-linear, so that is an indication that the residuals are not normally distributed. And these are basically the values of fitted versus residuals. Fitted versus residual is an important graph. If these points are aligned symmetrically over this line, so is a better situation. ये मैं अगर यहाँ कुछ points बना रहा हूँ, देखें, अगर ये सारे पॉइंट्स जो ऊपर और नीचे होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो ये इज अ बेटर फॉर्म ऑफ द ग्राफ।
लेकिन अगर ये पॉइंट्स ऊपर और नीचे डिसबैलेंस हो रहे हैं तो दैट इज एन इंडिकेशन कि जी ये जो आपके रेजिडुअल्स हैं ये कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और मॉडल में इतनी एक्यूरेसी नहीं दे रही है आपको। लेकिन हमारे पास कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं है। इसका मैं एक ग्राफ अभी जो सैंपल ग्राफ है वो भी दिखाता हूँ कि जो इसका सैंपल ग्राफ है वो क्या होगा। ठीक है, इसका देखें सैंपल ग्राफ ये होगा कि ये रेजिडुअल और फिटेड का ग्राफ किस शेप में होना चाहिए। ये है इसमें ये अगर बैलेंस्ड हैं, ये पॉइंट्स ऊपर और नीचे, इफ द पॉइंट्स आर बैलेंस्ड ऑन above the line and below the line is a better situation, is indicating a good model. लेकिन if the points are disbalanced, few number of points above and the large scattered point below is not a good representation of the model. And the third situation is this: if your points of residuals versus fitted values are not linear, is an indication of non-linearity. That means your model, if this is the situation, then your model is not fulfilling the assumption of linearity, not linear. हमने linear model लगाया है लेकिन linear हमें लगाना नहीं है. Reason is residual indicate कर रहे हैं कि जी आपका data linear pattern में नहीं है. तो you have to revisit your model. जो मैंने कहा था कि if the assumptions are not fulfilled, then you have to reconsider the model. You are not chosen a good model. You are not chosen a suitable model. So you have to select another model. This graph D is a violation of another assumption, and that another assumption is known as heteroscedasticity. What is the meaning of heteroscedasticity? Unequal standard deviations. तो one of the assumption is कि ये जो variable थे x1, x2 और y, एक इनका assumption ये भी था इनमें homoscedasticity होनी चाहिए, इनके variance same होने चाहिए. अगर इनके variance same नहीं है तो ये ऐसा ग्राफ आएगा. ये तो आपको फाइनली देखें assumptions हम कहते हैं कि before implementing the model you have to test the assumption. लेकिन यहाँ आप रिग्रेशन में भी ये देख रहे हैं उलट हो रहा है और अनोवा में भी the same case was कि the assumption was given after implementing and fitting the model. The reason is कि we are going to apply these assumptions over the residuals. अनोवा में भी हमने ऐसे किया था कि assumptions were tested after the model, after implementing the model. और residual regression में भी हमने यही किया है. इससे फायदा क्या होता है? Can any one of you answer this question? You can raise your hand. जी अजहर. सर आपने बताया था कि ये आप रेजिडुअल पे एक ही दफा आपने अप्लाई करना होता है नॉर्मेलिटी को चेक करने के लिए. अगर आप हर डाटा सेट पर अगर इंडिविजुअली अप्लाई करेंगे तो वो ज्यादा टाइम टेकन होगा. ठीक है, बहुत अच्छा आंसर दिया है. देखिए 3 वेरिएबल थे, अगर मुझे x1, x2, x3 हर एक पे assumption लगाने पड़ेंगे और y, x1, x2, y. अगर मुझे assumption देखने तो हर एक पे लगाऊं तो मुझे लिए ज्यादा डिफिकल्ट है. अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ रेजिडुअल पे assumptions को चेक कर रहा हूँ. assumption इसका मतलब है मुझे कैसे पता चलेगा फुलफिल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं. दिस इज द आइडियल सिचुएशन कि आपके जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स आपके ऊपर और नीचे बैलेंस शेप में अगर आ गए तो ये बेटरमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है एक पॉइंट. और दूसरे ये जो ग्राफ अभी मैंने दिखाया था रेजिडुअल वाला, ये रेजिडुअल वाला, ये आपका स्ट्रेट लाइन आ गया. तो दिस इज एन इंडिकेशन दैट कि ये आपका गुड मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इस वक्त मैं कंक्लूड कर रहा हूँ. देखें इस मॉडल को. इन दिस मॉडल we used 3 variable initially for the fitting purpose. One variable was evaluation, which is a predictor. Another variable is publication, is another predictor. And these 2 predictors are used to predict the variable salary. So your response variable is salary. Your predictor variable are evaluation and publication.
We have implemented the model. बीटाज आ गए थे हमारे पास, बीटा नॉट, बीटा 1, बीटा 2. इसमें हमें ये पता चला कि बीटा 1 सिग्निफिकेंट नहीं है, दैट इज इनसिग्निफिकेंट. बीटा नॉट सिग्निफिकेंट है, बीटा 2 सिग्निफिकेंट है. यू शुड हैव टू कीप दीज टू बीटाज इनटू द मॉडल. And one thing is important, and the assumption of linearity in the residual, which is fulfilled by the model. And one thing is more important, and that thing is these points are basically to be aligned above and below in a symmetrical pattern. ये थोड़ी सी वायलेशन इसमें नजर आ रही है. अगर यहाँ भी कुछ पॉइंट है, उसकी वजह ये है the size of data set is not too large. We have only just 50 observation. तो अगर ये size of data set बढ़ जाएगा तो ये जो इसमें मिसिंग नंबर्स आ रहे हैं ये भी आ जाएंगे. ये लेकिन रिकमेंडेड फॉर्म ये है कि आपको ये मॉडल रिविजिट करना है और इसमें से आपने इवैल्यूएशन को हटा के सिर्फ 2 वेरिएबल रखने हैं, सैलरी रखना है, पब्लिकेशन रखनी है, और फिर मॉडल को दोबारा बनाना है और उसकी बेसिस पर प्रेडिक्शंस बनानी है आपको. If anyone have any question, then you can ask. One more presentation I have in this lecture, but I'm not going to describe that presentation here. वो फिर हम इसको जो है वो बाद में करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो मैंने कहा है कि डिस्कशन बेस्ड लेक्चर है, उसमें हम इनिशियली फ्यू मिनट्स के अंदर उसको कंप्लीट करेंगे और देन वी विल हैव क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम यू. तो आप लोग अब इसमें अगर आपकी क्वेरीज हैं तो वो आप रेस कर लें. जी ज़ुहैब. सर मुझे एक बस रिक्वेस्ट थी कि आप ये प्रेजेंटेशंस शेयर कर देते हैं. जी मैं कर देता हूँ, सारे प्रेजेंटेशन कर देता हूँ मैं. और मुझे अंदाज़ा ये हो रहा है कि जो वीडियो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं, few of the students were read that file, क्योंकि उसमें जो नज़र आ रहा है वहाँ पे कि कितने लोगों ने उसको व्यू किया है, तो उसकी व्यूअरशिप हमारी जो क्लास के साइज से बहुत कम नज़र आ रही है. तो इसका मतलब है द एंटायर क्लास इज नॉट व्यूइंग द रिकॉर्डेड लेक्चर्स. तो आप इसको कर लें. उसकी रीज़न भी मेनली नज़र आ रही है कि क्विज का आपको पता है क्विज नहीं हो रहा, तो आप लोग उसको पढ़ भी नहीं रहे हैं. बहरहाल अभी मैं असाइनमेंट्स अपलोड कर दूंगा. अभी इंशाल्लाह कल तक मैं इसकी असाइनमेंट्स अपलोड कर दूंगा अनोवा के और रिग्रेशन के. तो आप इसको कंप्लीट कीजिए. फिर नेक्स्ट वीक में असाइनमेंट्स की सबमिशन की डेडलाइन आ जाएगी. नेक्स्ट सैटरडे को हमारा लास्ट लेक्चर होगा. उस लास्ट लेक्चर में हम क्वेरीज डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम्स के रेजोल्यूशंस की तरफ जाएंगे. कोई नया टॉपिक नहीं होगा उसमें. और जो सेगमेंट आज की प्रेजेंटेशन का एक बाकी है, वो एक केस स्टडी है मार्केटिंग की, वो इंशाल्लाह हम उसी लेक्चर के अंदर कवर करेंगे. अब अगर आपकी कोई और क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन. अदरवाइज मैं इसकी अपलोडिंग और ये सारा कवर इंशाल्लाह आज कर दूंगा. ये जी. No question? Okay, thank you very much.